Welcome back. Welcome back, students. We have finished lecture one. Not finished, we can say that we are in process of understanding projectile motion from IIT and a neat point of view. We have done a few concepts in lecture one. Let's have a look of those points. First, we studied the formula of horizontal range, time of light, and uh, maximum height in oblique projectile. Then we did the relationship between height and time of light, height and range, concept of maximum range, maximum height, and we told that the same formula are valid for vertically projected upward straight line motion, right? Then there are two angles for same range, and sum of those angle is 90-degree relationship between T1, T2 and same range, and similarly H1, H2 and same range. Kinetic energy at lowest and highest point, their relation was derived, followed by that total mechanical energy, यानी यानी sum of potential energy and kinetic energy sorry, during a projectile motion always remain constant. प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। बाकी चीजें बदलती रहती हैं। अभी मुझे इमीडिएटली याद नहीं है, और कोई चीज कांस्टेंट होगी वो धीरे धीरे समझ में आती रहेगी। Then we derived the formula for velocity of projectile at any instant of time, and then we find out the exact time when our final velocity or velocity of projectile is perpendicular to initial velocity of projection, followed by change in momentum during whole journey. Now we are moving to the lecture 2. The projectile is not finished, but we need to now understand in this part, we will be first concentrating on equations. Formation of equations in projectile motion. तो गला खराब लग रहा है, लग क्या रहा है? ठंडा पानी पिएंगे तो ऐसा ही होगा। तो बच्चों, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा मेरी वाइफ का कहना है। मानना न मानना मेरे ऊपर है, बट ध्यान रखें, नहीं मानूंगा तो भुगतूंगा भी मैं ही। मानना अच्छी बात है, हम सबको मानना चाहिए। So first of all, बेटे, we will take this case. This is our small tower. Aha. Now, this is our tower. I'm changing it to right. This is the ground level. We are going to project a body from top in horizontal direction. This is origin. Body will follow a parabolic path, right? This is any point P whose coordinate are x comma y from point of projection. I repeat, we are taking this as y-axis and this as x-axis. Means the fourth quadrant in which x is positive but y is negative. Right now we are taking the fourth quadrant as first quadrant. याद रखो बेटे, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही इक्वेशन लगती है। कौन सी? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी।
तो सबसे पहले तो आपको ना ये समझना चाहिए कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है u, एक्सलरेशन है 0, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है 0, एक्सलरेशन है ग्रेविटी के बराबर, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। सो पहले आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। सो आई कॉल इट वेलोसिटी एक्सलरेशन प्रोफाइल। तो नाउ लेट अस फर्स्ट टेक y। इक्वेशन हमेशा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज होगी। y के लिए y का प्रोफाइल लेना है, x के लिए x का प्रोफाइल लेना है। अब y का प्रोफाइल लेता हूं तो u 0 है, एक्सलरेशन g के बराबर है। x का प्रोफाइल लेता हूं तो u है, t है, एक्सलरेशन नहीं है। एंड फाइनली अगर हम सेकेंड इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास y और x के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा। बच्चों, इस फाइनल फॉर्मूले को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। और अगर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो तो पाथ पैराबोलिक होता है। यहां हमारा काम पैराबोलिक स्टडी करना नहीं है, हम सिर्फ यही बात करना चाहते हैं कि भाई ये मेरी y की इक्वेशन है, ये मेरी x की इक्वेशन। इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी हो। और इक्वेशन बनाने के लिए बस दो बातों का याद रखो, दो बातों या तीन बातों को याद रखो। पहला, फॉर्मूला हमेशा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज होगा। क्योंकि प्रोजेक्टाइल 2D मोशन है तो ये फॉर्मूला x डायरेक्शन में अलग और y डायरेक्शन में अलग यूज होगा। x डायरेक्शन के टाइम x प्रोफाइल और y डायरेक्शन के टाइम y प्रोफाइल यूज होगा। प्रोफाइल का मतलब है x डायरेक्शन में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सलरेशन, y में y की वेलोसिटी, y की एक्सलरेशन, y की जो भी आप कह लीजिए डिस्प्लेसमेंट। अब हम सेकंड लेते हैं। सेकंड सिचुएशन हमारे पास ये है कि भैया हम एक टावर पर खड़े हो गए और अरे टावर कहाँ गायब हो गया यार? ये टावर ना हुआ कि पॉलिटिकल टावर हो गया? पॉलिटिक्स में चीजें गायब होती हैं, नेता बनाते हैं। जैसे हमारे देश में क्या, हमारे रोहतक में सड़कें बनी हुई हैं लेकिन बनी नहीं हुई है। तो काइंड ऑफ मेरा पुल, मेरा टावर भी गायब हो गया। तो ये हमारा टावर है और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है जी। ये हमने यहां पर खड़े होकर एक बॉल को ऐसे फेंका है नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टली नहीं, एंगल पे। तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगी? ये ऐसे आएगी। नंबर वन। नंबर टू, न्यूमेरिकल करते वक्त चेक करें कि थीटा किसके साथ दिया हुआ है, टावर के साथ या ये जो डॉटेड लाइन बना रहा हूं इसके साथ। उससे क्या होगा? उससे प्रोफाइल बदल जाएगा। अब बेटे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हुई? u साइन थीटा। और इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन कितनी हुई? 0। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हुई u cos थीटा और एक्सलरेशन हुई g। तो बच्चा पार्टी ए क्या बनेगा? ए क्या बनेगा? y
इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, एक्सलरेशन भी डाउनवर्ड है। x क्या हुआ, u साइन थीटा इंटू टी। और अगर टाइम निकालना हो तो मैक्सिमम टाइम हम x की इक्वेशन यूज करते हैं। बाकी न्यूमेरिकली तो डिपेंड करता है कि x दिया है या y दिया है। न्यूमेरिकली हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हाइट दी जाती है, हाइट ऑफ द टावर जहां से बॉल फेंकी जाए, तो फिर हम y से स्टार्ट। बट हमें इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। द मोर क्विकली यू मेक द इक्वेशंस, मोर इजियर द प्रोजेक्टाइल मोशन विल बिकम। देन कम्स द थर्ड पार्ट। दो पार्ट हो गए, सामने फेंका, हॉरिजॉन्टल टावर टावर के ऊपर खड़े होकर, और नीचे फेंका। अब हम थर्ड पार्ट लेंगे, और बॉडी को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ऐसे। एंगल चेक कर लेना चाहिए। हम फिलहाल एंगल ले रहे हैं मोस्ट जनरल। भाई हॉरिजॉन्टल के साथ दिया जाता है तो हमने हॉरिजॉन्टल के साथ ले लिया, बट हर बार ऐसा होगा कह नहीं सकते बेटा। अब ये प्रोजेक्टाइल कैसे जाएगी, पहले ऊपर जाएगी, फिर ऐसे नीचे आएगी। एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं बैटर डायग्राम बना के। चलो, कुल मिला के बननी तो यही है। वैसे भी हमारा इंटरेस्ट इक्वेशन में है। तो प्रोफाइल क्या हुआ बेटा? देखो जी, एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा और g। मान लो ये पूरे टावर की हाइट y है। y डायरेक्शन में देयर इज अ प्रॉब्लम। साइन थीटा ऊपर है, y नीचे है, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट नीचे है, और एक्सलरेशन भी नीचे है। आइए x डायरेक्शन इसको ले लें और y डायरेक्शन इसको ले लें। इसका मतलब है कि हम राइट साइड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड साइड को पॉजिटिव मान रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? y साहब क्या बनेंगे? y डाउनवर्ड है, पॉजिटिव। वेलोसिटी अपवर्ड है, नेगेटिव, इनटू टाइम, और एक्सलरेशन डाउनवर्ड है। अब जिन्होंने 1D मोशन के न्यूमेरिकल चेक किए हों, मैंने बताया था कि अगर हम टावर पे खड़े होकर बॉडी को ऊपर फेंकें तब हम हमेशा ये वाली इक्वेशन लगाते थे। और मैंने ये बात भी बोली थी कि बच्चों में इन ऐसे क्वेश्चनों को 6 सेकंड प्रॉब्लम बोलता होता हूँ ताकि आपको इमीडिएटली याद आ जाए। उस क्वेश्चन में यही था कि टावर पर खड़े होकर एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है 19.6 की स्पीड से, 6 सेकंड के अंदर बॉडी नीचे आती है। बताइए टावर की हाइट क्या होगी? तो ये जो वर्टिकल मोशन है उसी 6 सेकंड प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व होता है। और हॉरिजॉन्टल मोशन जो है इसकी कोई टेंशन नहीं है। इसका वेलोसिटी, इसका जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल क्लियर है, u cos थीटा इंटू टी
एक्सलरेशन है नहीं। एज सिंपल एज दैट। अब हम सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट ये है कि अगर हमें टाइम निकालना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 99% केस में हमें क्या दिया जाएगा, हमें y दिया जाएगा। ठीक है जी, तो हम पहले y की इक्वेशन से टाइम निकालेंगे और उसकी मदद से फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, राइट। स्टेप सिंपल है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक इक्वेशन यूज करनी है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। वेलोसिटी प्रोफाइल या यूं कह लो एक्स प्रोफाइल और वाई प्रोफाइल बनाना है। और 3 प्रोजेक्टाइल डिस्कस हो चुकी। अब हम आ जाते हैं चौथी और फिलहाल के लिए आखिरी प्रोफाइल पर, और वो है हमारा ओब्लीक प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। ये गई। ठीक है जी। फायरिंग वेलोसिटी यू थीटा, ये कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। वेलोसिटी प्रोफाइल क्या बना, इस डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, एक्सलरेशन है नहीं, इस डायरेक्शन में यू साइन थीटा, और एक्सलरेशन नीचे की तरफ है जी। तो फिर बच्चा पार्टी पहले बनाते हैं वाई, यू साइन थीटा अपवर्ड, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, बात तो एक ही है। और x किसके बराबर हो गया, u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t। t किसके बराबर हो गया, x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। तो अगर हम पार्टीशन कर दें, पता नहीं भगवान कितने पार्टीशन करवाएगा हमारे से। अगर हम x की वैल्यू सॉरी t की वैल्यू पुट कर दें, तो y की वैल्यू बनेगी x टेन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप कहोगे सर दूसरा टी आपने नहीं हटाया। बेटे किसी किसी क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए नहीं हटाया है। और अगर हम दूसरे वाले टी को भी हटा दें तो क्या बन गया, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, यानी कि एक्स टेन थीटा माइनस जी बाय टू यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है और क्वाड्रेटिक इन टेन थीटा है। तो अगर मुझे सब कुछ दिया हो एक्स के अलावा तो मैं एक्स निकाल सकता हूं, और सब कुछ दिया हो थीटा के अलावा तो टेन थीटा एज अ क्वाड्रेटिक बनाकर पहले टेन थीटा निकल जाएगा और वहां से थीटा की वैल्यूज निकाली जा सकती है। तो ये हुई हमारी सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड लेवल, राइट। ठीक है, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ये कहता है, इसके ऊपर बेस्ड है तो हम इसको कॉपी ही कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है टेस्ट। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि देखो बालक, हमने एक टावर पकड़ा,
156.8 मीटर। ठीक है जी। टावर पकड़ा, ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़कर 39.2 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को फेंक दिया 30 डिग्री के एंगल पर। और अपन को दो बात जानने का है, ये बॉडी कितना टाइम लेगी और ये कितनी दूर गिरेगी। मैंने आपको पहले ही बोला था, सबसे पहले हमें y दिया जाएगा, तो सबसे पहले आप y लो। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन याद रखो, डाउनवर्ड मोशन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो s हो गया y डायरेक्शन में 156.8, वेलोसिटी हो गई ऊपर की तरफ 39.2 साइन 30, और क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, माइनस प्लस हाफ, ग्रेविटी पॉजिटिव क्योंकि डाउनवर्ड है। डायरेक्ट याद रखा करो, H इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर। ठीक है जी, टेंशन कोई लेनी नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये जो 156 है, ये 4.9 मल्टीप्लाइड बाय ये 4.9 इंटू 4 होता है, और 39.2 इंटू 4 156.8 होता है। तो 4.9 से उड़ा दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। मतलब क्वाड्रेटिक तो बनी बनाई है। बेसिक चीज क्या है कि इक्वेशन टफ नहीं है, सॉल्व करोगे तो टाइम की वैल्यू दो रूट आएंगी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव देखो हो नहीं सकती, तो 8 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू एक्स की इक्वेशन बनाकर आएगी। एक्स डायरेक्शन में एक्स का एक्सलरेशन प्रोफाइल 0 है, तो यू कॉस थीटा इंटू टाइम, मेरा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 271.6 मीटर। ठीक है, तो ये बेटे सिंपल सा तरीका है। क्वेश्चन कितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, चीज आसानी से हो जाती। सो नाउ वी आर टेकिंग द 6th पॉइंट। 6th पॉइंट में हम एक फॉर्मूला समझेंगे, बल्कि दो फॉर्मूले समझेंगे। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमने बॉडी को फेंका है, ये हमारी वेलोसिटी है u एट एन एंगल थीटा। सॉरी, थीटा थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिख दें। और मान लो किसी भी समय मेरी बॉडी पी पॉइंट पर है, तो अब आप इस ए पॉइंट को, ए क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ए और पी को जोड़ो। सो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो बेटे रूल ये होता है कि tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, इरेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट P। ये फॉर्मूला हम याद भी रख सकते हैं, बट एज यूजुअल मेरी आदत नहीं है। मेरी आदत है कि हमें अगर डिराइव करना आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू डिराइव इट। बच्चा पार्टी, मान लो P की हाइट y है, P x दूरी पर है, तो ये दूरी कितनी बन गई, r माइनस एक्स। तो tan अल्फा किसके बराबर हुआ, y बाय एक्स। tan बीटा किसके बराबर हुआ, r माइनस, सॉरी 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 सॉरी, tan बीटा किसके बराबर हुआ, y डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स। आइए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हम y की इक्वेशन बनाते हैं। y किसके बराबर हुआ, u साइन थीटा इंटू टी
माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, फिर हम x की इक्वेशन बनाएंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो अल्टीमेटली पता है, बोला यही करो, यू साइन थीटा इंटू टी, लिखते वक्त एक्स टेन थीटा लिख दो, यू स्क्वेयर बटे, ओ सॉरी सॉरी, दो बार सॉरी हो गया, एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। आप एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लें, सेकंड जो सेकंड टर्म है उसमें एक एक्स तो है, मगर टेन नहीं है। ये चीज हो गई। ध्यान रहे ऊपर एक्स स्क्वायर है, एक्स कॉमन चला गया, टेन थीटा कॉमन जा नहीं सकता था, डिवाइड हो गया। एक्स टेन थीटा को बाहर रहने दें, राइट। थोड़ा ध्यान से देखें, ये जो चीज है, अगर मैं टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा एज्यूम करूं, एज्यूम क्यों करूं, होता है, मतलब लिखूं नहीं, सिर्फ प्रिज्यूम कर लूं कि मैंने लिखा है, तो ये चीज मुझे नजर आएगी। अब ये जो मैंने ब्रैकेट डाली है, सर्कुलर ब्रैकेट, वो रेंज के बराबर है, रेसिप्रोकल ऑफ रेंज के बराबर है। तो एक तो बेटे हमें ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ओके, अब अगर हम थोड़ा और आगे कंटिन्यू करें, तो यहां से टेन थीटा निकालो, टेन थीटा बिकम्स वाई बाय एक्स आर अपॉन आर माइनस एक्स। रिमेंबर इट कैन बी रिटन एज आर माइनस एक्स अपॉन आर। इसको अगर मैं सम की फॉर्मेट में लिखता हूं, तो ये इसके बराबर आएगा। आप कहोगे ये कैसे आ गया? देखो, इसको अगर मैं एलसीएम ले लूं, तो x और r माइनस एक्स एलसीएम हो गया, ऊपर r माइनस एक्स प्लस एक्स चला गया, y कॉमन आ गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, एंड आई विल गेट द सेम रिजल्ट। अब ये चीज क्या है? टेन अल्फा। ये चीज क्या है? टेन बीटा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। सो ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट है जो हमें याद रहना चाहिए। अब आ जाते हैं हम सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट जो है वो हमें क्वेश्चन के रूप में ले रहे हैं। ठीक है जी। और क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल है, राइट, 30 डिग्री पे फेंके हो विद हॉरिजॉन्टल, ये एक दीवार को क्रॉस करती है, आई थिंक आई एम राइटिंग टू शॉर्ट, 9 मीटर अवे। बताइए रेंज कितनी है? ये हमारा सवाल है। आह, अगर क्वेश्चन को थोड़ा डायग्रामेटिकली समझना चाहो, तो ये बेटे हमने ग्राउंड मान लिया, ये हमने प्रोजेक्टाइल मान ली। आई विल नॉट बी शोइंग कंप्लीट थिंग्स। ठीक है, ये हमारी दीवार हो गई। थोड़ा और मोटी दिखा देता हूँ, ये हमारी दीवार हो गई। कहीं भी हो सकती है, मैक्सिमम हाइट से पहले हो सकती है, बाद में हो सकती है, डजेंट मैटर। ये हमारा 3 मीटर है, 3 मीटर की हाइट है,
ये 9 मीटर का डिस्टेंस है और वेलोसिटी है कितनी भला, पता नहीं, थीटा पता है और रेंज निकालनी है। तो बेटे इसका आंसर जो है, देखो जरा, इस फॉर्मूले से बन सकता है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले डिराइव किया। एक्स टेन थीटा 1 - x/r। एक्स कितना दिया है, 9। वाई कितना दिया है, 3। थीटा कितना दिया है, 30। एक्स कितना दिया है, 9। आर निकालने का है। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो बेटा, अंडरस्टूड है कि ये वाला फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा आसान है। अब टेन थीटा 30 डिग्री है। टेन अल्फा किसके बराबर हुआ, ये मेरा टेन अल्फा हुआ। कलर चेंज कर दें, ये मेरा अल्फा हुआ और ये मेरा बीटा हुआ। तो टेन अल्फा किसके बराबर हुआ, 3/9। और टेन बीटा किसके बराबर हुआ, 3/r-9। और टेन 30 किसके बराबर हुआ, 1/√3। तो आई स्ट्रांगली बिलीव, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज, आपको कौन सा फॉर्मूला याद रख सकते हो, आप इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। व्हाट इफ देयर इज एयर फ्रिक्शन। वैसे तो हम पूरी तरह डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन नीट और आईआईटी मेंस के लिए हमें प्रॉपर फॉर्मूले नहीं चाहिए कि जी फ्रिक्शन की वजह से ये फर्क पड़ता है तो बताओ क्या होगा। एक चीज तो हम पहले से जानते हैं कि ऊपर जाने का समय कम होता है, नीचे आने का समय ज्यादा होता है। लेकिन बाकी चीजें अब हम आपको बताते हैं, और ये पहला सवाल होगा, शायद इकलौता भी, जिसका हम प्रूफ नहीं देंगे। ये हमारा ग्राउंड हो गया। थोड़ा कोशिश करते हैं कि और नीचे ले आए। और ये हमारी मोशन हो गई, जितनी ऊपर से ले सकते हैं लेने की का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। और अब हम लेंगे पिंक कलर से, ये क्या बला है, ये दो डायग्राम क्या इंडिकेट करते हैं, ये है विदाउट एयर फ्रिक्शन। ये वो पाथ है जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगी विदाउट एयर फ्रिक्शन, और ये वो पाथ है जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगी विद एयर फ्रिक्शन। समझ में आ गया। तो अब हमें साफ दिख रहा है कि भैया जो हाइट होगी, ये एच डैश है, टी डैश है, आर डैश है, वगैरह वगैरह, हाइट कम हो जाएगी अगर फ्रिक्शन है तो, रेंज कम हो जाएगी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो जाएगा, आप जिस वेलोसिटी से टकराओगे वो वेलोसिटी कम हो जाएगी, कोई चीज बढ़ेगी भी। देखो डायग्राम में कुछ भी लग रहा हो,
मैं डायग्राम तो रैंडमली बनाऊंगा ना। ये जो थीटा डैश है ये बड़ा हुआ होगा। आप ज्यादा एंगल से टकराओगे विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। रेस्ट जो है वो सब कम हो जाएंगे। समझ आ गया? अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट केस है, अदरवाइज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अपवर्ड मोशन अलग से लो, डाउनवर्ड मोशन अलग से लो, अपवर्ड वेलोसिटी अलग से निकालो, वगैरह वगैरह। दैट वी आर नॉट टेकिंग दैट मच लेवल, we are keeping it to NEET and IIT mains level. So once again I am separating, creating partition. और अब हमारा 8वां पॉइंट। बोलो बच्चों, अरे बच्चों कहां से आए, हम खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं। 9th। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि देखो भैया, तुम हो अखबार वाले, इमेजिन कर सकते हो, ठीक? और तुम्हारा काम है अखबार फेंकना। एक्स और यू फिक्स्ड है। तुम्हारी साइकिल, अखबार की साइकिल या मोटरसाइकिल, या ऐशो आराम कर, मतलब करोड़पति अखबार वाले हो तो भाई मर्सिडीज, वो तुमने एक डिस्टेंस पर खड़ी कर रखी है और वो है फिक्स्ड, ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। मर्सिडीज खरीद रखी है, कोई बाजुओं में स्प्रिंग तो लगवा नहीं रखे एक्स्ट्रा, तो तुम जिस वेलोसिटी से फेंक सकते हो वो भी फिक्स्ड है। ये दो चीजें नहीं बदलेंगी। एंगल बदल सकते हो। और एम क्या है, मकसद क्या है? सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा ऊंचाई तक अखबार को फेंकना। सॉरी, देयर वाज अ लिटिल पॉज, समबडी कॉल्ड इट। ठीक है, तो एक्स और यू फिक्स्ड है। हमारा एम क्या है कि ये जो वाई है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, कि तुम कितना ऊंचा अखबार फेंक सकते हो। और आंसर है बेटा, बल्कि ये एज अ प्रूफ आता है कि सिद्ध करो कि वाई मैक्सिमम यू की पावर 4 जी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 GU स्क्वेयर के बराबर होगा। और सबसे बड़ा हिंट क्या है बेटे, अगर कोई चीज मैक्सिमम हो तो डिफरेंशिएशन जीरो होती है। मैक्सिमम हो या मिनिमम, डिफरेंशिएशन इज जीरो। मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से किए जा सकते हैं। तो आइए करें। अरे, अरे, कलर ही चेंज नहीं करने दे रहा भाई। आंसर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फिर उसी फॉर्मूले से, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस GX स्क्वायर 2U स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। मेरे पास बदलने को क्या है, थीटा, तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मैंने अपनी क्लास में तो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाई। टेन थीटा की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर थीटा होती है और सीकेंड स्क्वायर थीटा की डिफरेंशिएशन
पहले तो ये सीकेंड स्क्वायर है, इसकी डिफरेंशिएशन 2 सीकेंड थीटा होगी मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड थीटा टेन थीटा। डिफरेंशिएशन मैं अपने बच्चों को समझाऊंगा, जिनको आती है उनको समझ में आ गई। तो पुट या फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फिलहाल मैक्सिमा है, डी वाई बाय डी थीटा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो तो पुट कर लोगे, सॉल्व भी कर लोगे, तो सॉल्व करने पर टेन थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। आपकी मर्जी है, इस वैल्यू को याद रखना है याद रख लो, बट ये मेरा काम नहीं है। ठीक है जी, मैं आपकी बस मदद कर सकता हूं कि यू स्क्वेयर बटे जी आर मैक्सिमम होता है। अब इससे आपको थोड़ी सी मदद मिले तो टेन थीटा को याद रख लीजिए। ठीक है जी, कि इतने टेन थीटा पर रेंज सबसे ज्यादा, सॉरी वाई सबसे ज्यादा होगा, प्रोवाइडेड एक्स इज फिक्स्ड। तो अब हम इसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में मैं ना पुट कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। टेन थीटा की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, और सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा पुट करके टेन सीकेंड स्क्वायर थीटा को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखकर हम काम को खत्म करें। जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू जी यू स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी, तो आइए अब लेते हैं पॉइंट नंबर 10। इस पॉइंट 10 में क्या है, ये हमारी सेम डिंग डोंग डिंग प्रोजेक्टाइल। अभी तक क्या होता था, हमें यह बताया जाता था कि हमने हमें यू और थीटा बताए जाते थे, लेकिन अब हमें यू एक्स और यू वाई बताए जा रहे हैं, और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट का जो फॉर्मूला है वो इनकी टर्म्स में चाहिए, कॉस थीटा या साइन थीटा की टर्म में नहीं चाहिए। तो हिंट क्या है बेटे, हिंट ये है कि ये जो यू एक्स है ये यू कॉस थीटा होता है, और यू वाई जो है वो यू साइन थीटा होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, टू यू साइन थीटा बटे जी। तो जरा ध्यान से देखो, व्हाट इज यू साइन थीटा, यू वाई। व्हाट इज एच, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे टू जी। एंड व्हाट इज यू साइन थीटा, यू वाई। रेंज यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बटे जी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ यू साइन थीटा यू कॉस थीटा बटे जी। सो देयरफॉर रेंज इज, what is u sin theta, uy, what is u cos theta, ux divided by g। ये हमारा पॉइंट 10th हुआ। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, 11th। भाई क्वेश्चन आ गया, ये है एक ट्रेन, ट्रेन ट्रॉली कुछ भी, ये जा रही है मान लो 20 की रफ्तार से, और ये है एक पत्थर, और तुमने पत्थर फेंका सीधा ऊपर 30 की रफ्तार से। मुझे एच चाहिए, मुझे आर चाहिए, मुझे टी चाहिए।
तो ये क्वेश्चन सबसे सरल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में x कंपोनेंट 20 है वेलोसिटी का और y कंपोनेंट 30 है। ऊपर फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वैल्यू डालो, स्यापा मुकाओ। 12th पॉइंट पे आते हैं। सेम ट्रॉली है, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये एक बॉल है। इसको आप 50 की स्पीड से फेंकते हो 30 डिग्री पे। मुझे एच चाहिए, आर चाहिए, टी चाहिए। तो बहुत सिंपल है सर जी। एक्स कंपोनेंट क्या होगा? 20 तो ट्रॉली का है और 50 कॉस 30 बॉल का है। पहले क्यों नहीं लिया था? क्योंकि बॉल जो थी पहले सीधा ऊपर फेंकी गई थी और वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता है। यानी बॉल को ट्रॉली की वजह से सामने की तरफ 20 मिलेगी और ऊपर की तरफ 30 मिलेगी। ठीक है कि नहीं? थोड़ा लैग चल रहा है, एक बारी मैं स्टॉप शेयर करके रीशेयर कर रहा हूं। बेटे बात सिंपल सी होती है जब तक ये स्क्रीन ऑन स्क्रीन आता है। बात सिंपल सी है, ट्रॉली सामने जा रही है तो जो बॉल आप फेंकोगे उसे सामने की तरफ वेलोसिटी मिलेगी पिछले क्वेश्चन में 20 ट्रॉली की वजह से, और ऊपर फेंका है उसकी वजह से 30 या जो भी थी। लेकिन अब की बार आपने एंगल पे फेंका है तो 20 तो सामने की तरफ ट्रॉली की वजह से है और 50 कॉस 30 जो है वो आपकी वजह से है। और वाई डायरेक्शन, ट्रॉली तो हॉरिजॉन्टल है। अब मान लो आप ये कह देते कि सर ऐसा करते हैं कि थोड़ा मजा लेते हैं। ट्रॉली जा रही है आगे, सर जरूरी थोड़ी ना है कि हम बॉल को आगे ही फेंकें। तो अगर हम बॉल को पीछे फेंक दे तो मान लो 30 से पीछे फेंक देते हैं, तो अब क्या होगा? जो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बताओ एक्स डायरेक्शन का हुआ 20 -30 cos 30। 20 माइनस व्हाट इज कॉस 30? 0.866। तो 20 माइनस 18, 18, 19, 24 और 25, तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 हो गया। माइनस का मतलब है ये बॉल ऐसे पीछे आएगी। अगर ये प्लस होता तो ये बॉल आगे जाती। ट्रॉली कहीं जा रही है, जाने दो। यू आई, अब वर्टिकल तो देखो ट्रॉली की वजह से तो आ नहीं सकती। समझ आ गया? एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऑन अर्थ, अर्थ का मतलब है जी की वैल्यू पता है, प्रोजेक्टाइल है, फायर्ड विद का बोलते हैं 3 I कैप प्लस 5 J कैप मीटर पर सेकेंड। फाइंड HRT। देखो भैया, वेलोसिटी का दी हुई है 3 I कैप प्लस 5 J कैप। कछु नहीं करना है, E3 का है, ई बबुआ UX है, E5 का है, UI है। अभी छोटी छोटी बात समझ लो, फिर वो ऋतिक रोशन जी ने कहा है
राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही राजा बनेगा जो काबिल होगा। काबिल बनो, लेक्चर को ध्यान से सुनो। ठीक है जी। तीसरा लेक्चर जो हमारा है वो हम जल्द डालेंगे, वो होगा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल पे। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे और कुछ सवालों के जवाब भी, कुछ क्वेश्चंस भी हम लेंगे। गुड नाइट। कल वीडियो भेजते हैं।